हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे. And thank you so much in bottom of my heart, and I love you so much to all my soul family. I have no words for you because you always do cooperate for me, and I always thank you. So we will start. What is the today's is readings? What is going on in your partner life? What is going on in his situations? Many things. What will happen his life, his and her life. So first of all, you think about your partner. You think your partner names, like your partner name is Ravina. You can say Ravina with Ravi. So like that. First of all, I feel many people say that love is the one things. Actually, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या प्यार, किसी से प्यार किया जाए तो क्या वो मुझे किसी को धोखा दे सकता है? क्या सच्चा प्यार किसी को अट्रैक्ट कर सकता है किसी और को? So first of all, I think that's my opinion. I don't know. I don't want to. What are you thinking about this situations? I want to know if you are in the real relationships, the true relationship. You can't forget it every time, every moment. You can't disconnect with your partners. You can't one single thought. You can't disconnect. You can't attract it to other person, because many people saying his love me but fell down to other relationships. How can it possible? That can't be possible. If you are in a two relationship, how can possible? You can attract it to other person. Love is a different things. So why are you going? I think if you are in the relationship, with a true relationship, you can't go to anywhere, any conditions. True love is a different things. That person is in your mind and your hearts. 24/7 is going on in your mind and hearts. So how can disconnect to that person? I thought you can't disconnect. You can't attract it to other persons. So guys, actually जब हम किसी से ट्रू लव करते हैं ना, तो हम किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं हो सकते. एक सिंगल थॉट के लिए भी अट्रैक्टेड किसी और की तरफ नहीं हो सकते. ट्रू लव अगर आप किसी से करते हो, सच्चा प्यार अगर आप किसी से करते हो, तो आप सिर्फ उसी इंसान के ऊपर निर्भर रहोगे. आप उसको छोड़ोगे नहीं. 24/7, लाइक 24/7. इट मीन्स वो आपके दिल और दिमाग में रहेगा इंसान. यू कांट डिस्कनेक्ट फॉर दैट पर्सन. एंड उसके पास पैसा है या नहीं है, he is a beautiful or not, he is a handsome or not, she is a beautiful or not, he is a handsome or not, he has a money or not, doesn't matter. No need to worry. But you always touch for him. आप उसको ये नहीं सोचोगे कि इसके पास पैसा नहीं है, कि इसके पास ये नहीं है. आप रियली में दिल से उससे प्यार करोगे. आपके प्यार की कोई सीमा नहीं होगी. अगर आप उससे डिस्कनेक्ट होते हो, अगर आप उस बंदे से डिस्कनेक्ट होते हो, तो आई मीन्स वहाँ पे प्यार थोड़ी ना है. बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी है ना यार. ये मेरे हिसाब से यार, आई एम नॉट, इट्स माई ओपिनियन कि सच्चा प्यार तो सिर्फ एक ही इंसान से होता है, और उसी के साथ ही हमारा पूरा जीवन चलता है. आप नहीं अपना सकते किसी और को, आप नहीं देख सकते किसी और को, आप नहीं सोच सकते किसी और के बारे में, बिकॉज आपका ध्यान ही नहीं जाएगा. हज़ारों की भीड़ में भी ना आपको वही इंसान नज़र आएगा कि यार ये पर्सन मेरा है, ये पर्सन मेरा है, इससे मेरा कनेक्शन है. ये भले ही वो प्रॉब्लम्स में है, भले ही वो शक्ल सूरत में नहीं है, बट आप पूरी तरीके से फोकस उसी की तरफ रहेंगे, बिकॉज दैट इज़ द ट्रू लव्स. So I don't know what you're thinking about the true loves. Please give me a messages, give me a comments. What is the true love meanings in your feelings? आपकी नज़रों में, आपकी फीलिंग में
आपकी क्या है ट्रू लव? कहीं पे भी चले जाओ, बस पार्टनर को साथ रखो, ये है, या बस एक ही पार्टनर, सिंगल पार्टनर होना चाहिए? आई डोंट नो, मुझे प्लीज़ गिव मी आंसर बिकॉज आई वांट टू नो व्हाट यू थिंकिंग अबाउट द ट्रू रिलेशनशिप. Okay, just started for your partner's readings. What is going on in his life? And just please guide me. What is going on in his and her life? And just please guide me. And just मुझे गाइड करें मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी कैसी है. आंसर ज़रूर देना डियर. एम्प्रर्स. बिकॉज मुझसे ना कल किसी ने बोला कि ट्रू लव के बारे में दीदी आप मुझे बताएं कि ट्रू लव करते हुए भी कोई किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है. तो मैं ये आपसे पूछती हूँ, क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता. एंजल्स बताएं. फिर थर्ड पार्टी क्यों आती है? बहुत बड़ी बात है, लास्ट में बताऊँगी क्यों आती है थर्ड पार्टी. लास्ट तक रीडिंग में बने रहिएगा. इट इज़ अ सस्पेंस. एंजल्स बताएं. रियली मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी हाउ, ये कैसा हुआ, हमारी थर्ड पार्टी कैसे आ गई. एक और कार्ड ले लेते हैं. यस, सन विद द मैजिशियंस. एक्चुअली आपके पार्टनर आज थर्ड पार्टी से जूझ रहे हैं. थर्ड पार्टी, यस. एम्परर विद द जजमेंट. कुछ प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में जो वो फेस नहीं कर पा रहे हैं. यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, शादी से रिलेटेड कुछ बड़ा फैसला चल रहा है. आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं. आपको याद इतना कर रहे हैं कि आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो. यस, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर रहे हो. सडनली आप कितने भी हील होंगे, आपको अपने पार्टनर की याद बहुत ज़्यादा आती होगी. आपको उनकी क्रेविंग बहुत हो रही होगी. सडनली कोई ड्रीम्स आया होगा बिकॉज यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है. मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे वो जानते हो या ना जानते हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर कुछ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में. कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. लाइफ आसान नहीं लग रही है आपके पार्टनर की. आप कहोगे दीदी रोज़ तो यही चीज़ें आती हैं, क्या करें? तो मैं क्या करूं, मेरी सामने यही रीडिंग आती है डियर, मैं क्या कर सकती हूँ? एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड आई डू? जो दिखेगा वही मैं बोलूँगी, कुछ अपना तो अपनी तरफ से तो बोलूँगी नहीं. अब हम देखते हैं बस एनर्जी क्या है, एनर्जी का फ्लो कहाँ है. ये कार्ड्स कहाँ गए भाई? दूसरे कार्ड्स आ गए, तो आज यही कार्ड आना चाहते हैं. ओके, एंजल द एम्परर की एनर्जी क्यों है? कुछ लोग हैं टैरो रीडिंग में जो कहते हैं दीदी प्लीज़ इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया कीजिए. डियर मैं पूरी रीडिंग तो इंग्लिश में नहीं कर सकती, बट हाँ जहाँ आपके कमेंट्स होते हैं या जहाँ आपके व्हाट्सएप पे जवाब होते हैं मैं उनको ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ बिकॉज पूरी रीडिंग इट इज़ नॉट माई मदर लैंग्वेज. सो मैं ट्राई करती हूँ माई बेस्ट बिकॉज ऐसा लोग कहते हैं दीदी प्लीज़ आप इंग्लिश में भी हमें जवाब दें. एंजल एम्परेंस की एनर्जी क्या बताती है? 10 ऑफ पेंटिकल्स. एंजल बताएं. द वर्ड्स. ओके, जजमेंट की एनर्जी क्या है? क्या फैसला होना है? 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. एनर्जी बहुत पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ प्यार को लेकर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. आपके पार्टनर आपके लिए कुछ बड़ा फैसला ले रहे हैं. एंजल हायरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ वांड्स. यस, कुछ ना गलतियाँ तो उन्होंने की हैं पास्ट में, अभी भी कर रहे हैं. एंजल हैंगमैन की सिचुएशन क्यों आई है? चीटिंग विद कन्फ्यूज़न. कुछ ऐसे कर्मा थे जिसकी वजह से उनको फेस करना ही था. अब मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने जानबूझ के थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया या जानबूझ के वो थर्ड पार्टी को लेके आए हैं बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा लग रही है. ऑप्शन है पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से वो परेशान है. एंजल फूल की एनर्जी अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी, किया नहीं है. एक सेकेंड है ना. टावर विद 8 ऑफ कप्स. एंजल टावर क्यों आया है? 5 ऑफ वांड्स. सन की एनर्जी क्या बताती है? 4 ऑफ सोर्स. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स. मैजिशियन की एनर्जी क्या बताती है? 4 ऑफ वांड्स. जस्टिस.
डियर, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं डेफिनेटली। अपनी मदर से बात कर रहे हैं या तो कुछ बातें हुई हैं उनके फैमिली में। टेन ऑफ पेंटिकल्स हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते हुए देख रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। वो फील कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, जो उनसे सहन नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में अबंडेंस का कारक हो, आप उनकी लाइफ में उनको स्टेबिलिटी दे सकते हो, आप उनकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से, एक होता है ना परफेक्ट पर्सन, वैसा मानते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो और उनकी कुछ विश है जो आपके साथ पूरी होने वाली है। बिकॉज आपको स्पिरिचुअल तो बहुत मानते हैं, प्लस वो आपके साथ कुछ फैंटासी करना चाहते हैं। इट मीन्स वो एक एनर्जी है, दिख रही है, आई डोंट नो, मुझे वो कार्ड्स में तो नहीं दिखी, एक एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर प्रेगनेंसी को फील कर रहे हैं। रियली बताऊं तो या तो वो आपको प्रेग्नेंट होते हुए देखना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चे की माँ के रूप में आपको देख रहे हैं। बिकॉज इट इज़, वो विश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे जो आपके पार्टनर, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर आप मेल हो तो आपके पार्टनर जो सोच रही हैं वो कि चाहती हैं कि आपका बेबी उनके पास आए, है ना, वो प्रेग्नेंट हो जाएं ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट करें और ड्रीम्स देखना। और अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो वो आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये एनर्जी दिखी, बिकॉज कार्ड में नहीं दिख रही, लेकिन ये एनर्जी फील हो रही है मुझे। आपके पार्टनर आपको अपनी विश पूरी करना चाहते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करते हुए देखना चाहते हैं, और वो भी खुद के बेबी की। अब ये फैंटास्टिक कर रहे हैं नाइट में, या वो ये चीज़ फील कर रहे हैं, या उनकी ये चीज़ विश है, ये चीज़ डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर। बिकॉज आपके पार्टनर आपको वो हक देना चाहते हैं जो हक आपने कभी मांगा था। यहाँ हो सकता है, या भी ये भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और अपने हस्बैंड से अलग हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बिकॉज आई डोंट नो व्हाई मुझे प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा दिखी है यहाँ पे। उनकी विश है कि वो आपके साथ वो मोमेंट जिए जिसमें कोई कंसीव करता है। आई डोंट नो व्हाई मुझे क्यों दिखाई ये चीज़ें, आई डोंट नो, प्लीज़ आप देख लेना, ये चीज़ मुझे दिखी है। अब आप मुझे बताना ये एनर्जी क्यों दिखी। यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों के साथ जजमेंट होने वाला है, उन्हें 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनको कमिटमेंट मिल सकता है। बिकॉज यहाँ ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ जजमेंट के साथ आया है, कप्स की एनर्जी है। बिकॉज आपने बहुत प्यार दिया है यहाँ रिलेशन में, और आपके साथ जो होने वाला है अब इंसाफ होने वाला है। इंसाफ, इट मीन्स इंसाफ। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। गलतियाँ की हैं आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ, यस, या तो आपको छोड़ के किसी मैरिज, किसी रिलेशन में गए हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल में गए हैं। बिकॉज उन्हें अपनी गलतियों का बहुत एहसास है, चाह कर के भी वो उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपके कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है, पेन बहुत दिया है, और इस पेन से बाहर निकलना आपके लिए आसान नहीं था। उन्होंने उस वक्त आपका साथ नहीं दिया जब आपको सच्ची में उनकी ज़रूरत थी। लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट्स भी हमारी लाइफ में आते हैं जब हमें किसी की रियलिटी में ज़रूरत होती है और कोई हमारा साथ नहीं देता। उनको ऐसा लगता है कि आपका साथ उन्होंने उस जगह पे नहीं दिया जब आपको उसको देना चाहिए था। फील करते हैं आपके पार्टनर आपको बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। हैंग थे बिकॉज उन्होंने ऐसा नहीं कि अपनी खुशी से किया था ये सब, बिकॉज आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी सिचुएशन से हैंग थे, बिकॉज आपसे इसलिए दूर भाग रहे थे। यहाँ से देखो ना, 7 ऑफ सोर्स और कन्फ्यूज़न, और यहाँ हैंग सिचुएशन है। इनको मजबूरी में किसी और पर्सन के पास जाना पड़ रहा था, बिकॉज आपको ना चाहते हुए भी कोई कमिटमेंट नहीं देना, दूर भागना। आपको लग रहा होगा यार मुझे तो बहुत प्रॉब्लम्स है, बट ये बंदा पता नहीं कैसे दूर भाग रहा है, ये बंदा मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, ये बंदा मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, ये बंदा, आपको लग रहा होगा ये चीज़ें। बट उनकी मजबूरियाँ थी, बिकॉज उनके पास ऑप्शन थे, या कुछ ऐसा था, कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ वो अगर इस समय टाइम नहीं देते तो वो अपना सब कुछ खो बैठते। हो सकता है फैमिली में फादर मदर, पैसा, जॉब, कुछ ऐसा रुतबा था जो आपके पार्टनर खो सकते थे, इसलिए वो आपसे भाग रहे थे। बिकॉज उनको कुछ अपने कर्मा कंप्लीट करने थे। बिकॉज 7 की वाइब्रेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट करती है केतु की वाइब्रेशन को, और केतु क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट लाइफ कर्मा को। तो आपके पार्टनर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक थे, इसलिए वो आपसे दूर भाग रहे थे। और आपको लग रहा होगा यार बंदा काहे को दूर भाग रहा है, इसने मेरा बुरे वक्त पे साथ नहीं दिया, मैं क्या करूँ, अब तो आएगा ना, मैं उससे बात ही नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, उसने मेरा बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, मुझे जब ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा तब उसने साथ क्यों नहीं दिया। तो यहाँ आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ा तो वो हाँ तो सॉरी गाइस, वो चाल आया हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक थे अपनी लाइफ में। यहाँ आपके पार्टनर अब इस वक्त को ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज आपके दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट है, लड़ाई है, झगड़े हैं, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। एक
और एनर्जी मेरे पास दिख रही है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कार्ड में नहीं दिख रही। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो थोड़ा बचना, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा हैवी है, बिकॉज वो आपके लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और इस समय अगर आप ची चू कू कू या का करेंगे तो वो आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, बिकॉज वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो अपना प्यार को दिखा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उनका टाइम अच्छा नहीं है। उनकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है। अगर इस समय आप उनको से बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, तो वो उस सिचुएशन से बाहर, वो आपसे ही मूव ऑन हो जाएंगे, आपको ही ब्लॉक कर देंगे। तो ये एनर्जी दिख रही है कॉन्टैक्ट वालों के लिए। कॉन्टैक्ट वालों को थोड़ा सा अपने नेचर को प्रोटेक्ट रखना है, ज़्यादा बात नहीं करनी हो सकता है। और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट वाले तो मतलब ही नहीं है, वो वैसे ही टावर के सिचुएशन में है, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स है। उनके लिए उनके पार्टनर टावर को ख़त्म करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट हाँ डर ज़रूर है, उनको डर लग रहा है कि आपकी तरफ आना कैसा है। केयरफ्री होकर कुछ फैसले लेना चाहते हैं, या तो ले चुके हैं। आपके पार्टनर सडनली आपके पास आके बम फोड़ेंगे, भाई क्या करना है, शादी करती है या नहीं करती है, चलते हैं घर से भाग चल, चलना है या नहीं चलना। लड़की है तो कहेगी यार शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, देखो मैं छोड़ के आई हूँ। इस तरीके की एनर्जी। अब सडनली बम फूटेगा रियली में, आपने आपने सोचा भी नहीं होगा, एक्सेप्टेड भी नहीं किया होगा कि ये चीज़ें होंगी, या सडनली चीज़ें होंगी। आपको लगेगा यार क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिकॉज यहाँ भी सन को रिप्रेजेंट करता है 4 ऑफ सोर्स, द 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत समय तक उन्होंने अपनी फैमिली को, समाज को, सोसाइटी को, फादर्स को, सबको बचा के रखा था, वो सबको रोक के रखा था। बिकॉज अब उस चीज़ों से बाहर निकल रहा है। देखो ना, ये घोड़ा है और ये मूवमेंट कर रहा है। पहले क्या हुआ है, देखो इंसान सो रहा है, मजबूरी है। देखो यहाँ फैमिली वाले बैठे हुए हैं, मजबूरी है उनकी, दिखा रहे हैं। यहाँ देखो ये बंदा, यहाँ इसके ऊपर से भी 3 तलवारें, नीचे से भी 3 तलवारें, बिकॉज अगर बाहर निकलते हैं तो फैमिली मारती है। यहाँ से कोई और मार रहा है। बचा किसको रहे हैं, पैसे को बचा रहे हैं, नेम को बचा रहे हैं, फेम को बचा रहे हैं, सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उनको क्या हुआ है, अब इन्होंने घोड़ा ले लिया, एक वॉन्ड्स को हाथ में उठा लिया, अब कह रहे हैं आगे बढ़ो, अब बाहर में जाने दो, अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। अब मूवमेंट की एनर्जी है, मूवमेंट करेंगे। आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहा है, मैंने आपको ये तो बोल ही था, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो चाहे फोर्थ पार्टी में हो, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि रियली में आप स्टक हो गए होंगे इस समय। आपको लग रहा होगा यार सडनली मुझे क्या हुआ, मेरी एनर्जी कैसे हो गई। और आप अगर न्यू जर्नी में हो तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दे रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि यार मतलब कोई डिफरेंट एनर्जी, लाइक समझ में नहीं आना कि यार क्या है, खटी मीठी, रूठना मनाना, इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा हो रही होगी। और बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी आपके पार्टनर कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उनका एक्शन क्या होने वाला है। 10 एंजल्स मुझे बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे यूएस के पार्टनर का। एंजल्स क्या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। विज़न क्लियर हो रहा है आपके पार्टनर का। थर्ड आई, हाय हाय, तो लव यू शव यू, स्पिरिचुअल यूनियन। काफ़ी लोगों के यूनियन होने वाले हैं, किसके होंगे प्लीज़ बताना ज़रूर, कमेंट्स करना। विज़न क्लियर हो रहा है, यूनियन आ रहे हैं। ऑप्टिकल चैलेंजेस अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में हैं, टेंशन मत लो भाई, ऑप्टिकल चैलेंजेस इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाले हैं, बिकॉज जस्टिस होगा। भले कितने भी ऑप्टिकल्स हो, कितने भी चैलेंजेस हो, ईश्वर आपके साथ है। यही एनर्जी वहाँ पे भी आई थी। आए हाय, द होप भी है। एक कार्ड और लेते हैं, फिर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। एंजल्स बताएं, चूज़ वाइजली। क्या विज़न क्लियर हुआ है मेरे यूएस के पार्टनर का। एंजल्स क्या विज़न क्लियर हुआ है मेरे यूएस के पार्टनर का। हार्टिकल लॉस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा दर्द था। ये पेन किस लिए था, किसके लिए था, इनको ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये था आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिकॉज से शुरू की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन में थे आपके साथ। और इनको ये समझ में नहीं आ रहा था यार इतना दर्द क्यों, इतना पेन क्यों, मैं इतना नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रहा, मैं नॉर्मल क्यों नहीं हो रही, मैं उस इंसान के लिए इतना क्रेविंग क्यों फील कर रहा हूँ, मैं उस इंसान के लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। अब उनको ना विज़न क्लियर हुआ है। हो सकता है मेडिटेशन में कुछ दिखा हो सकता है उन्हें आपकी जर्नी के बारे में पता चला हो। विज़न का क्लियर होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब विज़न क्लियर होता है ना, तभी इंसान को समझ में आता है यार इस बंदी के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन है। यस, कुछ ना कुछ उनका विज़न क्लियर हुआ है। देखो ना, क्योंकि दिल टूटा हुआ था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था मेरा दिल क्यों टूटा हुआ है यार। फैमिली में सब कुछ थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। ऑप्शन भी बहुत हैं आपके पार्टनर के पास, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा था यार मैं इस बंदी से दूर हूँ, क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मली तो है, लड़की तो है, लड़का ही तो है, इतनी क्या हेडेक है।
सो ये विज़न क्लियर हुआ है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब आपके पार्टनर भी आपकी जर्नी के बारे में जान गए हैं, उनको पता चल गया है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और इस जर्नी में अब उनको भी वर्क करना है और आपके साथ यूनाइट होना है। एंजल बताएं स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड क्यों आया है, कौन स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड क्यों आया है। आई एम सेइंग जर्नी, फाइनेंशियल एंड मटेरियल्स। अच्छा, बॉटम डेक में है हारमनी। बहुत सारे लोग तो पता है बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना प्यार है जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है आपके पार्टनर को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चक्कर में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज यहाँ जॉब का उनको तो हो सकता है उनकी जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इस वजह से आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज प्यार इतना है कि अभी मरने के लिए, मटने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाएंगे वो आपके लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा बंदा, लेकिन प्रॉब्लम्स है बिकॉज यहाँ स्पिरिचुअल यूनियन हारमनी के साथ आया है। यहाँ द फाइनेंशियल एंड द मटेरियल चेंजेस इट मीन्स आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बना होता है ना कि एक छोटा सा सॉन्ग बताऊंगी बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी प्लीज़ सॉन्ग मत गाओ। मेरे को क्या करूँ, मेरे को चैनलाइज होते हैं तो मैं सॉन्ग को भी करती हूँ ना, बिकॉज मेरे को जो एंजल्स मैसेज देते हैं मैं वही करती हूँ। वो कहते हैं ना, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है, पास दरिया है दूर सहरा है फिर भी क्यों प्यास है, कदमों में जहाँ ये रख लूँ थोड़ा इंतज़ार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, वो पूरा कदमों में जहाँ रखने के लिए तैयार है। बट प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स है थोड़ा वेट करो यार। आई एम सो सॉरी गाइस, ये आपके पार्टनर का मैसेज है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट मत करना, दीदी गाने मत गाओ। एंजल्स रहता है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, किस चीज़ के चैलेंजेस हैं? प्रोस्पेरिटी बिगन्स। चैलेंजेस ये आ रहा है कि आपके पार्टनर शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, सॉलिट्यूड में हैं, सब सरेंडर मोड में करके बैठे हैं, सब कुछ ईश्वर के हाथ छोड़ के बैठे हैं, खुद की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब शुरुआत करना चाहते हैं सॉलिट्यूड के बाद। एंजल बैलेंस किस चीज़ में ला रहे हैं? इमोशनल डिसबैलेंस मैसेज करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जस्टिस की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, लव बिगिन, बिकॉज ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके साथ। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत डिसबैलेंस है, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है। बट ऐसा ही बताऊँ, वो आपको डर रहे हैं, कल की भी यही एनर्जी में डर था, आज की भी एनर्जी में डर है। उनको लग रहा है यार तुम कहीं गमला बमला ना मार दो। आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दो, भाई मैं तो मुझे कुछ नहीं करूँगी। पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे देनी है? आंखें बंद करो, मेडिटेशन में फील करो कि यस मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज आपके पार्टनर डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनकी सोल बहुत डर रही है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और उन्होंने अब जब लॉस खाया है, अब जब उनको पेन हुआ है, थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया या किसी ने भी उनको धोखा दिया, अब उनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो आपको मुँह दिखाएं कि यार मैं अपनी लाइफ में परेशान हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। वो चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप उनको एज ए हीलिंग सेंड करो। बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर इतनी तो हिम्मत आए, वो आपसे बात तो करी। अगर हिम्मत नहीं आएगी तो बात ही नहीं करेगा ये बंदा, तो क्योंकि हिम्मत नहीं आएगी तो ये सिचुएशन भी निकल जाएगी। आप सच में मेडिटेशंस करो, हीलिंग करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स करो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि हीलिंग सेंड कैसे करते हैं। एंजल बताएं होप का कार्ड क्या बताता है? आपके पार्टनर अब किसी की कीमत में आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। एंजल किसको सेक्रीफाइस करेंगे? अगर मेरे व्यूअर्स को नहीं करना चाहते तो किसको सेक्रीफाइस करेंगे? मैं हर सवाल कोशिश करती हूँ मैं आपका हर सवाल पूछूं, बिकॉज जो मुझे याद में आता है। मूविंग ऑन, हर सिचुएशन से मूव ऑन हो जाएंगे। चैरियट का कार्ड है, बिल्कुल किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, ना फैमिली के बारे में, ना किसी के बारे में। इस समय वो किसी को आपको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। एंजल चूज़ वाइसली, किसको चूज़ करेंगे? एंजल्स किसको चूज़ करेंगे? रीडिंग बड़ी हो जाती है डियर, मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करती हूँ छोटी बनाने के लिए। एंजल बताएं चूज़ वाइजली। प्रोस्पेरिटी एंड प्लानिंग, क्या प्लानिंग कर रहे हैं भाई? किसको चूज़ करना चाहते हैं? ये कार्ड तो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, एक सिचुएशन में ट्रैप है। थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहा है। अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन तो चाहते हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, माइग्रेन, दर्द, पेन,
विज़न उनका क्लियर है, लेकिन थ्रोट चक्र, अगर आपके पार्टनर पहले बोल नहीं पाते थे तो अब उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर वो, कुछ लोगों के पार्टनर इतनी बुरी तरीके से ट्रैप्ड है कि अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, कि वो आपको भी नहीं बोल पाते होंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। वो रियली में प्यार बहुत करते हैं, हद से ज़्यादा, लेकिन आपको बता नहीं पाते कि मैं कितना प्यार करता हूँ। क्योंकि जब यहाँ ब्लॉकेजेस होती है ना, थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस है, तो क्या होगा, आप अपने विज़न रख, आप अपनी बातों को रख नहीं पाओगे। जो इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, बिलीव मी, उनका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो यहाँ आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस लग रही है, आप काम करें। यू मस्ट बी डू वर्क इन योर बॉडी, इट विल हैपन योर पार्टनर्स। अगर आप अपनी बॉडी में काम करते हो तो पार्टनर की बॉडी में अपने आप काम होगा, क्योंकि आपको अपने चक्रास हील करने पड़ेंगे। यू मस्ट बी हील योर चक्रास, डू द मेडिटेशंस। I told him many times, please, if you are not doing the meditations, you must be do meditations. If you are the in a spiritual journey. So अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो मेडिटेशन मत करो, क्योंकि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र एक्टिवेट है। अगर एक्टिवेट होगा तो वो तो बोल देंगे, लेकिन अगर आपके पार्टनर आपसे भी कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते, अपने इमोशन नहीं रख पाते, तो यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों के चक्रास डिसबैलेंस लग रहे हैं। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है और चक्र इतने डिसबैलेंस हैं कि उनको क्या चाहिए। अगर वो प्यार करते हैं तो वो ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि यार ये चीज़ मेरी खुशी है, मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैप्ड है। तो प्लीज़ यू मस्ट बी डू योर चक्रास। आप चक्रास पे काम करो, बिकॉज चक्रास पे काम करोगे तो ही ये सिचुएशन कुछ हो पाएगी। बिकॉज चक्रास पे वर्क नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स होगी। मैं बहुत समय से आप लोगों को समझा रही हूँ, कम से कम मैं आपको कम से कम 4 से 5 महीने से समझा रही हूँ कि अगर आपके चक्र डिसबैलेंस रहेंगे तो आपके पार्टनर के ऑटोमेटिकली रहेंगे। यू मस्ट बी डू वर्क इन योर चक्रास। आपको बिल्कुल अपने चक्रास पे काम करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और मैं अपने हर क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो मेडिटेशन जरूर करो। यहाँ मुझे काफ़ी लोगों के पार्टनर तो ट्रैप से बाहर निकलते हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैप्ड रह जाएंगे, जिनके चक्र हील होंगे। जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है उनके पार्टनर तो निकल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है, आपके पार्टनर आएंगे तो, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिर उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर रहेगा, आके चले जाना। तो प्लीज़ मैं कहूँगी आज से ही मेडिटेशंस करना स्टार्ट करो। अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताओ कि दीदी प्लीज़ मुझे बताएं मेडिटेशंस कैसे करना है, तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा मेडिटेशंस करो, क्या करो, इनर वर्क कैसे करो। मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करती हूँ। बिलीव में जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं ना, मैं उपाय बताती हूँ, लोगों को क्या करना चाहिए वो तक बताती हूँ। और यूट्यूब पे भी मैंने बहुत बार बोला है कि आप ये वाला मेडिटेशंस करें। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द मेडिटेशंस। आपको मेडिटेशन तो डियर करना ही पड़ेगा। वर्क करो, खुद की बॉडी पे करो। आप ये मत सोचो कि मेरा पार्टनर नहीं करता। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दीदी मेरा पार्टनर तो कभी मेडिटेशन ही नहीं करेगा। मत कर रहे तो आप तो करो। आपको नहीं सोचना आपका पार्टनर करेगा या नहीं करेगा, भाड़ में जाने दो, लेकिन आप अपने अंदर वर्क करो। अगर आप लड़के हो रीडिंग देख रहे हो तो इट मीन्स आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप लड़की हो तो भी आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। ऐसा नहीं होता कि लड़के फेमिनाइन एनर्जी में नहीं होते हैं। अगर लड़के यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं तो इट मीन्स उनकी जो पार्टनर है वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। तो आपको अपने अंदर वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने सेल्फ को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा। इट्स वर्क इन योर सेल्फ। सो प्लीज़ मेडिटेशन इज मैंडेटरी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब प्लीज़ मुझे मत कहना दीदी हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों के पैटर्न आएंगे तो ज़रूर, लेकिन हाँ ट्रैप्ड है सिचुएशन में। पर्सपेक्टिव। दूसरा कार्ड्स क्या है एंजल्स? होप। हेल्प। मैंने कहा ना, देखो हेल्प मांग रहे हैं आपके पार्टनर को, हेल्प की ज़रूरत है। द साइलेंस। एक और देख लेते हैं कार्ड, मिस्ट्री। देखो यहाँ आपको अपनी लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने अंदर वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा इस रिलेशन के लिए। रिलेशन की सिचुएशन जो भी हो, चाहे रिलेशन में लड़ाइयाँ चल रहे हो, झगड़े चल रहे हो, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा हो, अगर आप उन्हें प्यार करते हो, आई टोल्ड हिम ना, मैं बिफोर एक्चुअली मैंने पहले से ही बोला था ना कि अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हो, आप ट्रू लव करते हो, यू आर इन द ट्रू लव, सो अपने पार्टनर के बारे में मत सोचो। आप अपने बारे में सोचो कि मुझे इससे प्यार है, मुझे वर्क करना है, मुझे अपनी सेल्फ को चेंज करना है, मुझे वर्क करना है। आप पॉजिटिव सोचें इस रिलेशन को लेकर के। जैसे ही आप पॉजिटिव सोचेंगे इसका इफेक्ट आप अपने पार्टनर के अंदर देखेंगे।
ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि वो तो धोखा देता है, वो तो गंदा है, वो तो ये है। अब जिस एनर्जी को भेजोगे वही एनर्जी आपकी तरफ आएगी। अगर आपका पार्टनर इस समय थर्ड पार्टी में भी है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यार ये ना कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो कमीना है, ये तो कुत्ता है, इसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया। बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं यार मत किया करो यार, ये नेगेटिव एनर्जी सेंड मत करो। अगर आप प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो, तो पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो। तो यहाँ आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ जितनी भी आप लोगों की फाइट चल रही है उसको मत सोचो। आप यूनिवर्स को क्या एनर्जी दे रहे हो, यूनिवर्स को पॉजिटिव दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। दिस इज द राइट टाइम। यूनिवर्स को बोलो यस आई एम रेडी एंड प्लीज़। होता है ना कि एक, आपको कैसे समझाऊँ, एक्चुअली मेरे पास भी वर्ड्स नहीं है। कभी कभी होता है ना कि वर्ड्स नहीं होते। यूनिवर्स को हम जो भी एनर्जी सेंड करते हैं, यूनिवर्स हमें वही एनर्जी सेंड देते हैं। हम पॉजिटिव भेजते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव भेजते हैं तो नेगेटिव मिलता है। यहाँ आप दोनों के बीच में भले घमाघम युद्ध चल रहा है, बट आपको यूनिवर्स पॉजिटिव एनर्जी देनी है और आपको अपने पार्टनर के लिए माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। आउटर वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, इनर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, डिपेंड ये करता है। ठीक है ना। फिजिकल बॉडी है, लड़ती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ो यार। मैंने कहा ना, जहाँ प्यार नहीं है वहाँ लड़ाई नहीं है, जहाँ लड़ाई नहीं है समझो वहाँ पे प्यार, जहाँ प्यार लड़ाई नहीं है वहाँ प्यार भी नहीं है। लड़ाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनर वर्क में क्या है, अंदर क्या है, अंदर से अपने पार्टनर को कैसा मानते हो, इट इज़ डिपेंड। ठीक है ना। होप मत छोड़ो, होप है आपके रिलेशन में अभी भी बहुत सारी चीज़ें। हेल्प, आपके पार्टनर को हेल्प की नीड है, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। मुझे यही दिख रहा था, एंजल्स भी यही गाइड कर रहे हैं। हेल्पलेस हो चुके हैं वो, हेल्प करो उनको, हीलिंग सेंड करो, बिकॉज ज़रूरी है हीलिंग सेंड करो। बिकॉज अकेले बैठे हुए हैं, देखो ना कितने तरीके से अकेले बैठे हुए हैं, बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने इमोशन भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इसको आपको हीलिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। द साइलेंस, थोड़ा सा अकेले में बैठ के फील करो आपको क्या चाहिए। अगर ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है तो अपने पार्टनर की गलतियों को माफ़ करो, रिलेशन को आगे बढ़ो। अगेन आई एम सेइंग, मैं नहीं कह रही कि मेरे कहने से माफ़ करो, आपका दिल क्या कहता है, अपने दिल की सुनो। आंखें बंद करो एंड फील करो यार, क्या यार ये पार्टनर वही है जिसके मैं ख्वाब देखती हूँ, क्या मैं इसके ऊपर बिलीव कर सकती हूँ, क्या ये वही रिश्ता है जो गॉड ने मुझे दिया है। बिलीव मी, आपको अंदर से ही जवाब आएगी, यस आप इसी रिश्ते का वेट कर रहे हो। और अगर आपको लग रहा है नहीं यार मेरे दिल से इस बंदे के लिए आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे को इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, मेरे को इसके साथ वो फीलिंग्स नहीं है, बट मैं मजबूरी में देखती हूँ, क्योंकि कुछ लोग पता है एटीट्यूड में किसी को छोड़ना नहीं चाहते। यार ये बंदा मेरा था ना, अब ये किसी और का नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखते हैं कि यार तू किसी और के पास नहीं जा सकती, तू किसी और के पास नहीं जा सकता। डैट इज़ नॉट अ लव, ये प्यार नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती आप किसी इंसान को पकड़ के बैठे हो। ज़बरदस्ती मत पकड़ो, उसको प्यार से हैंडल करो। अपने दिल से पूछो क्या यार सच्ची में मैं इससे प्यार करती हूँ, तो आपका दिल आपको जवाब देगा यस आप इससे प्यार करते हो। जब आपको प्यार करते हो तो आप उसके लिए वर्क करो, आप उसको हीलिंग सेंड करो, आप अपने आप को चेंज करो, आप मेडिटेशंस करो, आप वर्क करोगे, आपके पार्टनर के ऊपर अपने आप वर्क होगा। अब ये नहीं कह सकते कि दीदी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल डेफिनेटली। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ये जर्नी ऐसी होती है कि इसमें एक जने को कर्मा रिलीज़ किया के लिए भेजा जाता है और दूसरे जने को सिर्फ मेडिटेशन और इनर वर्क के लिए भेजा जाता है। ये दोनों सोल जब कंप्लीट होती हैं, ये भी अपने इनर वर्क कंप्लीट करती है, अपने कार्मिक लेसन लर्न करते हैं, जो फेमिनाइन होती है वो अपना इनर वर्क कंप्लीट करती है, देन ये दोनों मिलते हैं। तो आप दोनों एक सोल से कनेक्टेड हो, एक कॉर्ड होती है आप दोनों के बीच में, कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, आपकी कॉर्ड और आपके पार्टनर की कॉर्ड। आप किसी भी रिलेशन में हो, एक आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, एक आपकी पार्टनर की कॉर्ड जुड़ी हुई होती है। तो उसके माध्यम से आप एक दूसरे को एनर्जी सेंड करते हो। तो लव रिलेशन इज़ अ वेरी नाइस रिलेशन यार, बहुत खूबसूरत रिलेशन है, इसको खूबसूरती के साथ निभाओ। यस प्यार करते हो तो ईमानदारी से करो, रियली में मेरा एक ही फंडा है कि आप अगर ईमानदारी में किसी के साथ हो तो ईमानदारी से करो। सामने वाला धोखा दे रहा है उसको कट करो, देखो कि सामने वाले ने आपके साथ जो प्रॉमिसेस किए वो कंप्लीट किए तो ठीक है। किसी ने बोला कुछ, किया कुछ, किसी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपसे शादी करूँगा, एक बार, दो बार, तीन बार हुआ और उसने कुछ और किया, अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर दी, आपने उसको माफ़ किया, एक बार माफ़ किया, दो बार माफ़ किया, देन आपको लग रहा है ये बंदा मान नहीं रहा, ये से मेरी लाइफ को ख़राब कर रहा है, क्रॉस दिस पर्सन, क्रॉस दैट पर्सन, मत आने दो उसको अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है आप उसको ब्लॉक करो, आप उसकी लाइफ से निकलो। और अगर आपको लगता है नहीं मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकती, मेरी तो लाइफ ही नहीं है इसके बिना, तो भाई वो रोज़ आएगा, आपको परेशान करेगा, आपको यूज़ करेगा, आपके साथ रहेगा भी, वो थर्ड पार्टी को भी रखेगा, आप कुछ नहीं कर सकते।
आजमाओ अपने पार्टनर को। और अगर आपका पार्टनर ही गलत है तो आप अपने रास्ते को अलग करो ना, अपने रास्ते को अलग करो। आप किसी और रास्ते पे चले जाओ, डायरेक्शन चेंज करो ना, समझाने की कोशिश करो, नहीं मान रहा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करो, ठीक है। बट ऐसे इंसान के साथ मत रहो कि पूरी ज़िंदगी आप रो ही रहे हो। वो आ रहा है महीनों में, आपको कह रहा है कि यार मैं तेरे साथ हूँ, और पता चले वो आपके पास आया, एक बार मिला, फिर वो भाग गया, फिर महीनों बैठे आप फिर रो रहे हो अपने हाथों पे रह करके, यार दीदी मेरा पार्टनर नहीं आया। फिर 9 महीने वेट किया, फिर वो बंदा आया, उसने आपका यूज़ किया। यूज़ भले फिजिकली नहीं होता, कोई आकर के भी तो इंसान को हिला जाता है। यार आपकी ज़िंदगी है, कोई म्यूनसिपाल्टी का वो नहीं है कि कोई कभी भी आ गया, स्कूल नहीं है कि कोई कभी भी आ गया। अब ये मत बोलना कि म्यूनसिपाल्टी के स्कूल में थी कोई भी चला जाता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो जैसे एक मुहावरा यूज़ किया। आपका ये है यार, दिल है, कोई किराए का घर नहीं है, कोई भी उस किराए के घर में आ जाए और निकल जाए, फिर आ जाए। अपने दिल के दरवाजे बंद करो। और अगर आपको लगता है नहीं दीदी मैं बंद नहीं कर सकती, तो उस पार्टनर को बुलाओ। अब आपका फैसला है, वो आपके हाथ में है। योर डिसीजन ऑन योर हैंड। मैं नहीं कहती कि आप मेरी सुनो, आपकी फ्री विल है, आपको जो भी सुनो, लेकिन हाँ प्लीज़ लाइफ है, इसको एंजॉय करो, रो मत, परेशान मत हो, चेंज लाओ अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस को देखो। कभी कभी ऐसा नहीं होता हमारी लाइफ से कोई एक इंसान चला जाता है, उसके बाद कोई और खूबसूरत इंसान हमारी लाइफ में आ जाता है, फिर हमें लगता है यार मैंने खामे का इस इंसान के लिए अपना समय ख़राब किया। कितना मैं रोती थी इस रिलेशन में, कितना दर्द था, कितना पेन था, मैं उस रिलेशन से निकल ही नहीं पा रही थी। और जैसे ही आप हिम्मत करके निकलते हो, आपको कोई और पर्सन मिलता है, वो बहुत ज़्यादा प्यारा, वो लविंग, वो पर्सन होता है जो आपका सच्ची में ड्रीम पार्टनर होता है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ को चेंज करो और अपनी लाइफ में देखो, चेंज करो अपनी लाइफ को, अपने थॉट को चेंज करो, ठीक है ना। तो डेफिनेटली लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। तो ये थी रीडिंग्स, आई होप आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। नेगेटिव कमेंट्स मत करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, कीप इट ऑलवेज, हर हर महादेव, टू ऑल माय सेल्फ एंड मी, बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।